Okay, so in previous class we have seen Z parameters, Y parameters, okay, hybrid parameters, and G parameters or inverse hybrid parameters for two-port network. Okay, we have seen I think two numerical for calculating Z parameters. So today we will discuss transmission parameters and inverse transmission parameters. You can say ABCD parameters and A dash, B dash, C dash and D dash parameters. Okay, so ABCD parameters कहाँ यूज्ड होते हैं? जैसा नाम है ट्रांसमिशन पैरामीटर्स. ओके, तो आई थिंक आपने ट्रांसमिशन लाइन सुना है. Any idea about transmission line in case of electrical engineering? Yes or no? So basically, ABCD parameters are used in the two-port network to represent transmission line. Okay. So with the help of ABCD parameters, we can define a mathematical behavior of the transmission line. ओके, बिकॉज पावर का ट्रांसमिशन किस तरीके से होगा. ओके, तो जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज ट्रांसमिशन पैरामीटर्स और एबीसीडी पैरामीटर्स बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पावर सिस्टम इंजीनियर्स to be through with the mathematical modeling of how this power is transmitted. Okay, in case of generating a station to substation, or in case of generating a station to residential homes, or you can say substations with maximum efficiency. That's why to represent transmission line we use ABCD parameters. Okay, ठीक है, फाइन. अब ABCD पैरामीटर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? लेट अस सी व्हाट इज द मैथमेटिकल बिहेवियर फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन. स्क्रीन शेयरिंग मोड में है? नो सर. No, sir. Okay, No, fine. sir. ओके. Okay, 1 minute. ठीक है, नाउ इट इज ओके ना? यस Yes, सर. sir. ठीक है, फाइन. ओके, so let us see mathematical behavior or mathematical modeling of transmission line parameters. So heading is transmission parameters or ABCD parameters. Okay, so in case of ABCD parameters, already I told you dependent variables and independent variables. So what are the dependent variables for transmission line parameters? V1 I1. V1 I1. Okay, and what are the dependent variables? V1 I1. Okay, and what are the independent variables for ABCD parameters? V2 minus I2. V2 minus I2. Some books also write I2. Okay, fine. So in case of transmission line parameters, we have dependent variables V1 I1 and independent variables V2 I2 or V2 minus I2. So with the help of dependent variables and independent variables, we can write ABCD parameters in matrix form. So first we will represent V1 I1 according to column matrix of size 2 cross 1.
We will define ABCD parameters according to matrix of size 2 cross 2. Elements are A, B, C, and D. And independent variables we can define with the help of matrix, with the help of column matrix of size 2 cross 1. Okay, so this is matrix representation for transmission line parameters, or you can say for ABCD parameters. With the help of matrix representation, we can write equations. So first equation becomes B1 equal to AB2 minus BI2, and second equation becomes I1 equal to CB2 minus DI2. Okay, so first equation, we have second equation, both will define mathematical behavior of transmission line parameters. Okay, with the help of equation first and equation second, we can write value of A, value for B, C, and D. So what is the value for A? So V1 by V2, where I2 equals to 0. B1 by B2, where I2 is 0. Okay. So what is the meaning of A? So open circuit, reverse voltage gain. Right, open circuit reverse voltage gain, right. Open circuit reverse voltage gain. Okay, reverse open circuit reverse voltage gain. Okay, so it is ratio of input voltage to output voltage. Okay, so it is unitless quantity. Similarly, we can define C. So what is the value for C? I1 by B2, where I2 is 0. That's why C is known as open circuit. Open circuit Driving point. Input admittance. driving point input no, we cannot say input, we cannot say driving point, because it is ratio of I1 to B2. Numerator is for input port, denominator is for output port. So it is known as open circuit transfer admittance. It is known as open circuit transfer admittance, because it is ratio of current to voltage, and it is ratio of input current to output voltage. So we can say C will define open circuit transfer admittance. Similarly, we can define B. What is the value for B? Minus B1 over I2, where B2 is 0. So what is the meaning of B? Negative short circuit. We are saying short circuit because we know B2 is 0. That's why you can say negative short circuit. Transfer impedance. Right, transfer impedance. Impedance because it is ratio of voltage to current, and it is ratio of input voltage to output current. So we can say B will define negative short circuit transfer impedance. Okay, last D. So what is the value for D? What is the value for D? Minus I1 upon I2. Minus I1 upon I2, where B2 is 0. So what is the meaning of D?
negative short circuit, reverse or current gain. current gain. Okay, so we have A, B, C, D. Okay, A means open circuit reverse voltage gain, C means open circuit transfer admittance, B is short circuit transfer impedance, D is short circuit reverse current gain. Okay, can we draw the equivalent circuit for ABCD parameters? Is it possible to draw equivalent circuit for ABCD parameters or for transmission line parameters? Let us see the equations. Equation first and equation second. Is it possible to draw equivalent circuit with the help of equation first and with the help of equation second? If no, what is the reason? If yes, तो ड्रॉ करके दिखाइए. किसी ने आंसर दिया था. हाँ जी बताइए, ड्रॉ कर सकते हैं, यस और नो? Can we draw equivalent circuit for ABCD parameters with the help of equation first and equation second? क्या हुआ? सब लोग चुप हो गए. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए. वी हैव B1 और B1 की डिपेंडेंसी B2 I2 के लिए है. सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन वी आर कैलकुलेटिंग I1 एंड I1 की डिपेंडेंसी B2 I2 पर है. So is it possible to draw equivalent circuit? No, because So दोनों इनपुट्स V1 I1 की दे रखी. right, because both the equations for T parameters are of one port only. That's why we cannot draw the equivalent circuit for transmission line parameters. Okay, because equations of ABCD parameters don't imply that B2 and I2 are independent variables and B1 and I1 are dependent variables. This is because at a given port, both the voltage and the current cannot be constrained by respective independent voltage source and independent current source simultaneously. Okay, yesterday we have seen Z parameters, Y parameters, H parameters, and inverse H parameters. So what are the equations? Already we have seen. Okay, so in case of Z parameters, Y parameters, H parameters, and inverse H parameters, there is one independent variable at each port, either voltage or current, and other variable is dependent. So we can realize equations in equivalent circuit, or you can say equivalent circuits of Z parameters, Y parameters, H parameters, and inverse H parameters can be realized with the help of equations. But what will happen in case of ABCD parameters? What will happen in case of ABCD parameters? First and second, both equations are for input port only. Okay, because ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होता है, आपको ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसको मेंटेन करने के लिए उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो दैट्स वाई हमने B1 कैलकुलेट किया, हमने I1 कैलकुलेट किया. ठीक है, ओके, इसीलिए केवल एक पोर्ट के लिए दोनों इक्वेशंस हमने लिखी हुई हैं. दैट्स वाई वी कैन नॉट ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट
फॉर एबीसीडी पैरामीटर्स और फॉर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ठीक है, ओके। तो इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है, राइट। सो लेट अस सी लास्ट इनवर्स एबीसीडी पैरामीटर्स। चलिए लिखिए सब लोग, इसके लिए आपको ये तो पता ही होगा, लिख लेंगे सब लोग। इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, inverse transmission line parameters. Notations, we have A dash, B dash, C dash and D dash. So what are the dependent variables in case of inverse transmission line parameters? V2 I2. B2 I2. Okay. And what are the independent variables? B1, Minus B1 I. I1 or B1 minus I1. So with the help of dependent variables and independent variables, we can write a matrix representation for inverse transmission line parameters. With the help of B2 I2, it is column matrix equal to A dash, B dash, C dash, D dash. It is a square matrix of size 2 cross 2, and we have B1 minus I1. It is a column matrix of size 2 cross 1. So here matrix will define mathematical behavior of inverse transmission line parameters. With the help of matrix representation, we can write equation. First equation we have B2 equal to A dash B1 minus B dash I1. Second equation we have I2 equal to C dash B1 minus D dash I1. Okay, so with the help of first equation and second equation, we can write value for A dash, B dash, C dash and D dash. So what is the value for A dash? B2 over B1, where I1 is 0. So what is the meaning for A dash? What is the meaning for A dash? So voltage gain at input open circuit. Okay, open circuit, forward voltage gain or reverse voltage gain? Forward. Open circuit forward voltage gain. Open circuit forward voltage gain. Okay, so what is the value for C dash? I2 by B1, where I1 is 0. So what is the meaning for C dash? Open circuit transfer, open circuit transfer admittance, because it is ratio of current to voltage. Open circuit transfer admittance. Similarly, we can define B dash and D dash. So what is the value for B dash? B dash minus B2 by I1, where B1 is 0. So what is the meaning for B dash? Negative short circuit Transfer impedance. transfer impedance. Negative short circuit transfer impedance. Last we have D dash. What is the value for D dash? We can calculate with the help of second equation. If we will consider B1 as 0, so D dash becomes minus I2 by I1, where B1 is 0. So what is the meaning for D dash? Negative short circuit. Forward current gain. Current. Okay, forward current gain. Forward current gain. ठीक है, तो जहां पर आउटपुट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना होगा, वहां पर हम इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स यूज करेंगे। ट्रांसमिशन
लाइन में डिफरेंट कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, जहां पर इनपुट पोर्ट क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां पर हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट जेड पैरामीटर्स, बाई पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स, इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर्स, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एंड इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ओके, आपके लिए ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स और इनवर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स जनरली बी यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और पावर ट्रांसमिशन। ओके, in electronics we use hybrid parameters to simplify to calculate voltage gain, current gain, input impedance, output impedance for the transistor. ओके, तो आई थिंक सिलेबस में है ये, 4th सेम में होगा या फिर 3rd सेम में ही होगा। तो वहां हम एच पैरामीटर, वहां हम ट्रांसमिशन, वहां ट्रांजिस्टर का हम एच हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे, तो वहां जो पैरामीटर्स होते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, उसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ hybrid equivalent model for the transistor. ठीक है, so this is all about different parameters for the two port network. सर इसमें हमने नेगेटिव क्यों लिया करंट? हाँ, नेगेटिव क्यों लिया? बिकॉज जनरली जो हमारा अजम्पशन था इनपुट पोर्ट के लिए, तो प्लस माइनस B1 I1, ठीक है, और आउटपुट पोर्ट के लिए प्लस माइनस B2 I2, ठीक है। अब हमें यहाँ करंट हमें चाहिए आउटपुट के लिए। आप देखो, फर्स्ट केस में हमने B1 I1 कैलकुलेट किया, यहाँ हमने B2 I2 कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यहाँ जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी, बट स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन देखिए, तो करंट की डायरेक्शन को जस्ट उन्होंने रिवर्स कर दिया, इसीलिए हमने माइनस I2 कंसिडर कर लिया। कुछ बुक्स ने I2 भी लिखा हुआ है, कुछ ने I2 प्लस I2 लिखा हुआ है या प्लस I1 लिखा हुआ है, कुछ ने माइनस I2 लिखा हुआ है या माइनस I1 लिखा हुआ है। बिकॉज आपको जैसे आपने जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, राइट, और जो आपका रिसीविंग स्टेशन है, तो रिसीविंग स्टेशन को पता होनी चाहिए ना कि इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है। सेम वे में अगर आपको रिसीविंग स्टेशन पे वोल्टेज या फिर करंट पता करनी है, तो उस केस में हमें मतलब दोनों चीजें, इनवर्स भी है और नॉर्मल केस भी है। नॉर्मल केस में हम जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है उसकी वोल्टेज करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इनवर्स के केस में हम रिसीविंग स्टेशन की या फिर जो आपका सब स्टेशन है वहां पर हम वोल्टेज करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने जो डायरेक्शन थी उसको जस्ट रिवर्स कर दिया, इसीलिए साइन जो था वो माइनस का आ गया। तो आप I1 I2 भी ले सकते हैं, माइनस I1 माइनस I2 भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी? जल्दी बताइए, और किसी की कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताइए, यस और नो? So can we move for next topic? Yes. Okay, most important topic, correlation between two port parameters. Most important topic, और ये जनरली पूछा जाएगा, ठीक है। कोरिलेशन और रिलेशनशिप, कोरिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू पोर्ट पैरामीटर्स, कोरिलेशन बिटवीन टू पोर्ट पैरामीटर्स और रिलेशनशिप बिटवीन टू पोर्ट पैरामीटर्स, टू पोर्ट पैरामीटर्स। इसमें आपको क्या करना है, सपोज आपको कोई सर्किट दिया हुआ है या कोई नेटवर्क आपको गिवन है,
आपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग जेड पैरामीटर कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अगर आप एच पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या जो इक्वेशंस हमें मिली हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एच पैरामीटर इक्वेशंस। आफ्टर दैट if we will compare equations with h parameter equations, then we can calculate h parameters for given circuit. बट रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है कि अगर आपने जेड पैरामीटर कैलकुलेट किया है तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप you can calculate any other parameter. So here we will define different parameters in terms of other parameters. For example, we can define h parameters in terms of z parameters. We can define h parameters in terms of ABCD parameters. Okay, we can define bi parameters in terms of h parameters. We can define bi parameters in terms of z parameters. ठीक है, तो आपको मैं केवल 2 या 3 रिलेशन कराऊंगा क्योंकि सबका मेथड सेम है, ठीक है। तो आप एक अच्छे से समझना, जो जनरली पूछे गए हैं वो मैं करा देता हूं। बाकी अगर आपको एक समझ में आ जाएगा, आप बाई कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जेड, आप एच कैलकुलेट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जेड और इन टर्म्स ऑफ बाई। ओके, ठीक है, फाइन। सो फर्स्ट वी विल सी एच पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स। ओके, ये जो जनरली पूछा जाता है, एच पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप नहीं याद है तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप वहां पर भी पहले कैलकुलेशन करिए, फिर आप फॉर्मूला ड्राइव करिए, उसके बाद फिर आप एच पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेड पैरामीटर्स। तो जरूरी नहीं है कि हमें याद ही रखना है रिलेशनशिप, क्योंकि याद रखना पॉसिबल नहीं है। ओके, बिकॉज आप किसी भी पैरामीटर को किसी भी पैरामीटर के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। वी कैन कैलकुलेट वन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स, ठीक है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू कीप इन मेमोरी। ओके, आप प्रोसीजर समझ लीजिए कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज एच पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, we will determine h parameters in terms of z parameters, ठीक है। तो सबसे पहले आप h पैरामीटर्स की इक्वेशंस लिख लीजिए, ठीक है। आपको h पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है in terms of z parameters. So first we will write mathematical model for h parameters. बताइए क्या इक्वेशंस होंगी? हाँ जी, जल्दी से बताइए, इक्वेशंस क्या होंगी एच पैरामीटर्स के लिए? एच पैरामीटर्स के लिए इक्वेशंस क्या होंगी? क्या हुआ, कोई है नहीं क्लास में प्रेजेंट? सब तो है। V1 equals to H1। हाँ, अब मैंने बोला कि अगर आपको इक्वेशंस याद रखने का तरीका क्या है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स याद रखिए ना। तो एच पैरामीटर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे? P1 I2। V1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे? I1 B2। अब आप इन दोनों से इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? P1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 B2। सेकेंड इक्वेशन I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 B2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें H पैरामीटर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें इसको फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, ठीक है। और ये सभी के लिए वैलिड है,
एक दो और कराऊंगा तो थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो दिया हुआ है उसको लिख लिए। सो वी हैव जेड पैरामीटर्स। कौन सा पैरामीटर्स आपको गिवन है? जेड पैरामीटर्स। ठीक है, तो गिवन है आपको जेड पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स की इक्वेशंस बताइए। जेड पैरामीटर्स की इक्वेशंस बताइए। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल्स बताइए जेड पैरामीटर्स के लिए। v1 v2 V1 V2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स V2 i1 i1 i2। ठीक है, तो जेड पैरामीटर्स की इक्वेशंस क्या होंगी? फर्स्ट इक्वेशन वी हैव v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2। सेकेंड इक्वेशन v2 इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। सपोज थर्ड इक्वेशन, सपोज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप i2 कैलकुलेट करिए। ठीक है, आपको कंपेयर करना है, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करना है थर्ड फोर्थ के साथ। ओके, दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करना है थर्ड फोर्थ के साथ। ठीक है, तो आप एक बार फोर्थ इक्वेशन ध्यान से देखिए। फोर्थ इक्वेशन क्या है? v2 इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2। तो वेरिएबल्स आप देख लो एक बार। फोर्थ इक्वेशन में v2 i1 i2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिए, वेरिएबल्स i1 ओके, v2 ओके, i2 ओके। तो सेकेंड को हम फोर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, यस और नो? सेकेंड को हम फोर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. लेकिन तभी कंपेयर होगा जब हम फोर्थ को रीराइट करेंगे फॉर i2, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फोर्थ को रीराइट करना पड़ेगा। अभी फोर्थ के अकॉर्डिंग आपने v2 लिखा हुआ है, v2 इक्वल टू समथिंग, बट सेकेंड में आपने i2 इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। सो वी कैन कंपेयर ओनली इफ we will rewrite fourth according to i2। okay, so first we will rewrite equation fourth। ठीक है, आप फोर्थ को रीराइट कर लीजिए। रीराइट कैसे करना है? सो दैट वी कैन कंपेयर सेकेंड विद फोर्थ। सो रीराइट फोर्थ इक्वेशन। तो i2 कितना होगा फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग? बताइए, फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग i2 कितना होगा? सर Z22 कॉमन V2 कर कॉमन है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, कॉमन मत लिखिए। V2 हाँ, तो पहले आप i1 वाला टर्म लिखिए, पहले i1 वाला टर्म लिखिए। सो माइनस z21 ओवर z22 i1। सेकेंड बताइए, सेकेंड अपॉन Z22 हाँ, सेकेंड क्या होगा? प्लस v2 अपॉन z22, इक्वेशन फोर्थ डैश। ठीक, अल्टीमेटली आपको कंपेयर करना था सेकेंड को फोर्थ के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, और हमेशा इवन का कंपेयर इवन के साथ, ऑड का कंपेयर ऑड के साथ। वन का कंपैरिजन थर्ड के साथ होगा, सेकेंड का कंपैरिजन फोर्थ के साथ होगा। ठीक है, या जिस इक्वेशन में सारे पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं आप उसको कंपेयर कर लो, बस केवल उसको रीराइट करने की जरूरत होगी। तो हमने सबसे पहले फोर्थ को रीराइट किया i2 के लिए, अब हम सेकेंड को फोर्थ डैश के साथ कंपेयर करेंगे। तो लेट अस कंपेयर सेकेंड इक्वेशन विद इक्वेशन फोर्थ डैश। चलिए बताइए, h21 बताइए कितना होगा? minus Z21 upon Z22। ओके, सो h21 वी हैव माइनस z21 अपॉन z22। ओके, एंड h22 1 by Z2 1 upon 1 अपॉन z22। ओके, सो वी हैव h21 वी हैव h22। फाइन, ओके। अब बताइए फर्स्ट को हम थर्ड के साथ कैसे कंपेयर करें? अगर
1 मिनट। हाँ देखिए एक बार इक्वेशन ध्यान से देखिए, 1 को थर्ड के साथ कंपेयर करना है। पहले आप वेरिएबल्स देख लीजिए, दोनों में सेम है। अगर सेम है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो उस वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है? लेट अस सी फर्स्ट इक्वेशन, b1 we have same, वैल्यू डाल देंगे। okay, I1 we have same, okay, but in first we have b2, in third we have I2, okay, तो फर्स्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज हमें H11 H12 कैलकुलेट करना है। हम केवल थर्ड को चेंज कर सकते हैं, तो थर्ड में हमें I2 को एलिमिनेट करना है। फाइन, और I2 की वैल्यू हमने फोर्थ डेस्क के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सो वी विल पुट वैल्यू ऑफ I2 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड को रीराइट करना है, रीराइट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसको फर्स्ट से कंपेयर करना है टू कैलकुलेट H11 एंड H12। ओके, सो लेट अस पुट value of I2 from fourth dash in equation third। बताइए क्या होगी इक्वेशन थर्ड में? दोबारा लिख दूं, थर्ड इक्वेशन क्या थी? B1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। I2 की वैल्यू पुट करिए। I2 की वैल्यू आप फोर्थ डैश से पुट करिए। कितना है I2 की वैल्यू? माइनस Z21 अपॉन Z22 I1 प्लस B2 अपॉन Z22। सिंप्लीफाई करिए जल्दी से, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिए। सभी लोग सिंप्लीफाई करिए, बिकॉज अगर आप कोशिश करेंगे रटने की, आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, आपसे डेरिवेशन भी नहीं होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हाउ वी कैन राइट वन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर। कितना आया B1 सिंप्लीफाई करने के बाद? सब V1 की वैल्यू आएगी, I1 बाहर ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, तो ठीक है। Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 दोबारा बोलो, Z11 माइनस Z12 इंटू Z21 अपॉन Z22। नहीं, Z11 के साथ Z22 भी आएगा। आप देखो ना, I1 आपने कुछ मिस कर दिया, एक टर्म आपने मिस कर दिया। सर ये Z11 अलग लेंगे, मतलब Z11 माइनस अलग जाएगा, फिर मतलब एलसीएम के ऊपर चला जाएगा। नहीं, आप समझे नहीं। आपने क्या किया, देखो यहाँ Z11 I1 है, ठीक है। अब ये Z12 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और I1 वाले टर्म्स को सेपरेट कर लो। हमें I1 अगर आपने बाहर लिया है तो उसका एक कोफिशिएंट एक ही होना चाहिए। I1 के दो टर्म्स नहीं होने चाहिए। आप क्लब कर लो I1 टर्म्स को। सर इसकी इक्वेशन Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 I अपॉन में Z22 प्लस Z12 अपॉन Z22 V2। हाँ राइट, क्योंकि B2 वाला तो सिंपल है, B2 वाला तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। Z12 ओवर Z22 B2। प्रॉब्लम क्या है कि I1 वाले दो टर्म्स हैं, फर्स्ट Z11 I1, सेकेंड है माइनस Z12 Z21 ओवर Z2 I1। अब आप एलसीएम लेके उनको सिंप्लीफाई कर लो। सो वी हैव Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 डिवाइडेड बाई कितना बोला आपने? Z22, ठीक है। I1 इन ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट में है, I1 प्लस I2 B2 का कोफिशिएंट क्या लिखा आपने? Z12 ओवर Z22 B2, ठीक है। सो दिस इज माई इक्वेशन थर्ड डैश, ठीक है। ओके, यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Okay, now let us compare
थर्ड डैश विद फर्स्ट। बताइए, अब कंपेयर करना है तो सिंपल है, पहला टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा? H11। H11 कितना होगा? Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ये 11 सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स Z का डिटर्मिनेंट है या नहीं है? आपने जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो मैट्रिक्स Z का डिटर्मिनेंट है या नहीं? नहीं समझ में आया? ओके, मैट्रिक्स Z आप क्या लिखते थे? Z11 Z12 Z21 Z22, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। तो आप न्यूमरेटर को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Z, डेल सबस्क्रिप्ट Z। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Z, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ Z मैट्रिक्स। फाइन, तो H11 कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई Z22। And what is the value of H12? What is the value of H12? Z12 upon Z22. Z12 upon Z22. Okay, so we have H parameters in terms of Z parameters. न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, न्यूमेरिकल आएगा तो आप डायरेक्ट वहीं करिए, बस इक्वेशंस में टर्म्स को रीअरेंज करना है या फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। देन यू हैव वन पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू गिवन नेटवर्क इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स। ओके, ठीक है, फाइन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सभी ने नोट कर लिया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब एक आप खुद करेंगे सेकंड, ठीक है। सारे केसेस में नहीं कराऊंगा। ओके, सेकंड आप खुद करिए। बाई पैरामीटर्स, लेट अस कैलकुलेट बाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z parameters, in terms of Z parameters। चलिए कैलकुलेट करिए बाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स। बाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर्स, कौन सा पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है? किस पैरामीटर को कैलकुलेट करना है? बाई। सो फर्स्ट वी विल राइट मैथमेटिकल मॉडल फॉर बाई पैरामीटर्स। ओके, जिसको फाइंड करना है उसका मैथमेटिकल मॉडल आप पहले लिखिए, उस पैरामीटर्स की इक्वेशंस को चेंज नहीं करना है। जो पैरामीटर आपको गिवन है उसकी इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है, सो दैट यू कैन कंपेयर इक्वेशंस विद बाई पैरामीटर्स equations to calculate बाई पैरामीटर्स in terms of Z parameters। ओके, चलिए बताइए बाई पैरामीटर्स की इक्वेशंस क्या होंगी? I1 equal to Y11 V1 plus Y12 V2 और Right. I2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2। ओके, ठीक है, बिकॉज बिना इक्वेशंस के तो फिर आगे डेरिवेशन होगा नहीं, तो कोशिश करिए वेरिएबल समझने की। Y22 V2 सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कौन सा पैरामीटर गिवन है आप उसकी इक्वेशंस को लिख लीजिए। कौन सा पैरामीटर आपको गिवन है? आपको Z पैरामीटर गिवन है, सो लेट अस राइट इक्वेशंस फॉर Z पैरामीटर्स। Z पैरामीटर्स इक्वेशंस क्या होंगी Z पैरामीटर्स के लिए? B1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, इक्वेशन थर्ड सपोज
B2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 इक्वेशन सपोज फोर्थ। किसके साथ कंपेयर करना है? फर्स्ट को कंपेयर किसके साथ करना है? 3 के साथ। ओके, 2 को कंपेयर किसके साथ करना है? फोर्थ के साथ। बट आपने इक्वेशंस प्रॉपर लिखी हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी ने सेकेंड इक्वेशन पहले लिख दी फिर वो कहे कि मुझे फर्स्ट को कंपेयर करना है थर्ड के साथ, ठीक है? तो जैसा स्टैंडर्ड मॉडल है, अगर आपने उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखी हैं तभी आप फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सेकेंड को फोर्थ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? एक बार आप फोर्थ इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सेकेंड में I2 B1 B2 इन फोर्थ बोलिए, फोर्थ में we have B2 B2 सेम, ओके, I2 सेम, ओके। तो फोर्थ में किसको एलिमिनेट करना है? I1 को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले फोर्थ को I2 की टर्म्स में लिखिए, उसके बाद एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड से I1 कैलकुलेट करके फिर हम फोर्थ में पुट करेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड को अगर फोर्थ के साथ कंपेयर करना है, लेट अस रीराइट फोर्थ फॉर I2। कितना होगा फोर्थ के अकॉर्डिंग? I2 कितना होगा फोर्थ के अकॉर्डिंग? I2 कितना होगा? B2 Z22 माइनस Z21 अपॉन Z22 I1। ओके I1 सर पहले आ जाए। ओके, सो B2 अपॉन Z22 माइनस Z21 अपॉन Z22 I1। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, आप देखिए I2 इक्वल टू I2 सेम, मतलब LHS में I2 सेम। सेकेंड और फोर्थ डैश को देखिए, RHS देखिए, RHS में B2 सेम, बट सेकेंड के अकॉर्डिंग B1 होना चाहिए, फोर्थ डैश में I1 है, तो I1 को एलिमिनेट करना है। अब I1 की वैल्यू हम कहां से निकालें? थर्ड से। I1 की वैल्यू हम थर्ड से कितना होगा I1? थर्ड से I1, V1 हाँ थर्ड से V1 अपॉन Z माइनस Z12 अपॉन Z11 I2। ओके, सो फ्रॉम थर्ड I1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो I1 कितना होगा? I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू, बताइए कितना बोला आपने? V1 अपॉन Z11 V1 अपॉन माइनस Z11 माइनस Z12 अपॉन 12 अपॉन Z1 ठीक है, I2 Z11। Z11 I2 ना, ठीक है। सो I1 होगा थर्ड के अकॉर्डिंग B1 ओवर Z11 माइनस Z12 ओवर Z11 I2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कहां पुट करेंगे? लेट अस पुट वैल्यू फॉर I1 फ्रॉम थर्ड इनटू फोर्थ डैश। ठीक है, चलिए बताइए फाइनल जल्दी से। I2 इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाई Z22 माइनस Z21 ओवर Z22। I1 की वैल्यू पुट करिए, B1 ओवर Z11 माइनस Z12 ओवर Z11 I2। आया किसी का? सिंप्लीफाई होके
सिंप्लीफाई होके आया किसी का? यस और नो? नहीं, I2 वाले टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए। पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। आ गया आपका? एक मिनट। यस सर। Z21 मैं लिख दूं पहले। Z11 Z22 B1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। Z21 Z12 डिवाइडेड बाई Z11 Z22 I2, ठीक है। तो आप I2 वाले टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज I2 कैलकुलेट करना है। कितना आया I2 बताइए। सर Z22 into Z11 माइनस Z21 Z12 अपॉन Z22 Z11। I2 सर बाहर को माना जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे I2 इक्वल टू चाहिए B1 B2 के टर्म्स में। मुझे I2 की वैल्यू चाहिए B1 B2 के टर्म्स में। और किसी का आंसर आया? और किसी का आंसर आया? सर V2 अपॉन I2 इक्वल टू V2 अपॉन Z22 माइनस Z2 अपॉन Z22 Z11, फिर होल अपॉन में 1 माइनस Z21 Z12 अपॉन में Z22 इंटू Z11। तो डिटर्मिनेंट नहीं बन रहा है? डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट नहीं बन रहा है? सर बन रहा है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट के टर्म से बता दो सिंप्लीफाई करके। बार बार मैं लिखूंगा Z11 Z22 माइनस Z21 Z12, तो I2 आएगा आपका B2, ओके। कितना? Z11 डिटर्मिनेंट ऑफ Z माइनस B1 Z21 अपॉन डेल Z। डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ओके। तो अगर आप इसको प्रॉपर लिखना चाहें I2, पहले B1 वाला टर्म्स लिख लो, सो दैट कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Z21 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z B1 प्लस Z11 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z B2। So this is my equation, fourth double dash। फोर्थ ही तो थी ना ये? Yes or no? यस सर। Okay, now compare second with fourth double dash। So सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी हमें? by 21। तो by 21 कितना होगा? माइनस Z21 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z, और by 22 क्या होगा? Z11 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा थी यहाँ पे, क्योंकि दोनों को हमें मॉडिफाई करना है। अब फर्स्ट और थर्ड को कैसे कंपेयर करें? जल्दी बताइए, फर्स्ट और थर्ड को कैसे कंपेयर करें? सर I2 हटाना पड़ेगा सर इसमें से, उसमें सर I2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे थर्ड में। रुक जाओ, आपने जो बोला, एक मिनट पहले मैं देख लूं। लेट मी स्क्रॉल अप। हमें फर्स्ट को कंपेयर करना है थर्ड के साथ, ओके। सो लेट अस सी वेरिएबल्स फॉर फर्स्ट I1 B1 B2। लेट अस सी वेरिएबल्स फॉर थर्ड B1, ओके, I1, ओके। I2 को एलिमिनेट करना है ना थर्ड में? Yes, sir. I2 को एलिमिनेट करना है, तो आपने फोर्थ से I2 निकाला होगा, यस और नो? आपने इक्वेशन फोर्थ से I2 की वैल्यू कैलकुलेट की है। वी हैव रिटन फोर्थ डैश, ठीक है। सो लेट मी स्क्रॉल राइट।
सो दैट आपको दिखता रहे। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बोलिए, इक्वेशन थर्ड में लेट अस पुट वैल्यू ऑफ I2 फ्रॉम फोर्थ डैश इनटू इक्वेशन थर्ड, यस और नो? We will Yes, sir. put the value of I2 from fourth dash into equation third। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, इक्वेशन थर्ड में I2 की वैल्यू पुट करनी है, और वो I2 की वैल्यू कहां से आएगी, I2 की वैल्यू कहां से आएगी, इक्वेशन फोर्थ से, यस और नो? ठीक है, Yes, sir. चलिए पुट करिए जल्दी से। सो B1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 की वैल्यू पुट करिए। I2 कितना था फोर्थ डैश के अकॉर्डिंग, I2 की वैल्यू थी B2 अपॉन Z22। ओके, इसीलिए मैंने सामने लिखा हुआ है सो दैट आपको दिखता रहे, माइनस Z21 ओवर Z22 I1। ये तो सिंपल है, जल्दी से बताइए क्या होगी इक्वेशन। जल्दी से बताइए इक्वेशन क्या आएगी। और थर्ड को देख लेना, थर्ड को हमें किससे कंपेयर करना है, फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपने थर्ड में I2 की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको I1 लिखना पड़ेगा, मेक श्योर, तभी कंपेयर होगा। कितना आया I1? चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो यहां से I1 आएगा, Sir, I1 आया Z22 upon del Z into V1 minus Okay. Z1 Z22 upon del Z into V2। ओके फाइन। सो इक्वेशन कितना लिख दूं, थर्ड डैश लिख देता हूं। ओके, सो कंपेयर फर्स्ट विद थर्ड डैश। चलिए फर्स्ट वैल्यू किसको डिफाइन करेगी, Y11। सो Y11 कितना होगा, Z22 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z, और Y12 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस Z12 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ Z। ठीक है, सो दिस इज वैल्यू फॉर Y11 एंड दिस इज वैल्यू फॉर Y12। ठीक है, लंच के बाद एक क्लास और है, तो उसमें एक और बता दूंगा जो आया है लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सब भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। किसी कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। यस सर। हाँ जी बताइए। सर वो जो आपने कल मैटलैब का बताया था, उस पे जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो डिपार्टमेंट मांग रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आ रहा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हो? उसमें